ایسے ہی چلتا رہے گا سلسلہ؟ دیکھیے اچھی برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں اور اچھی بری چیز ہر جگہ ہوتی ہے اور وہ اس کے لیے ان کے میکینزم ہیں, ان کے پاس اپنے میکینزم ہیں, ان کے پاس اپنے ان کی جو ایسوسیشن ہیں وہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کیا کرنا. جی سر, کل ڈی جی آئی اسپیئر صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد ایک اور نیا نیریٹو پی ٹی آئی کا سامنے آیا ہے, اس پر پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا موقف, اور ڈی جی آئی اسپیئر کی جو پریس کانفرنس تھی اس پر بطور پیپلز پارٹی کے کارکن سینئر وزیر کے آپ کا کیا رائے ہے؟ دیکھیں جی, آپ دیکھیں کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس کی ہے, یہ پریس کانفرنس انہوں نے کیوں کی ہے؟ پہلے سوال ہے کیوں کی ہے؟ جیل میں ایک قیدی جس کے لیے کہا جا رہا تھا کہ اس کو ملاقات کروائی جائے, اور حکومت نے ان کی جو بہنیں ہیں عمران خان صاحب کی ان کو بولا جائے ملاقاتیں کریں, وہ ملاقات کرا کے نکلتی ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد اس قیدی کے اکاؤنٹ سے, جو کہ خود جیل میں بیٹھا ہوا وہ اس کا پرسنل اکاؤنٹ ہے, اس کا آفیشیل اکاؤنٹ نہیں ہے, کون سے ملک سے وہ اکاؤنٹ آپریٹ ہو رہا ہے, اس اکاؤنٹ سے آپ کے ہمارے اپنے ملک کے اداروں ان کے سربراہوں کے خلاف جو ہے وہ ایک گری ہوئی باتیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اخلاق سے گری ہوئی باتیں اور اپنے ہی چیزوں کو کنٹروورسی کرنے کی کوشش پوری دنیا میں کے لیے انہوں نے کی کوشش. ڈیفینیٹلی آئی ایس پی آر کی طرف سے جو بیان آیا وہ اس عمران خان کے اس ٹویٹ کا ایک جواب تھا. دوسرا کہ پی ٹی آئی کے لیڈران اور عمران خان کے فیملی والے وہ بھارتی میڈیا کو جا کے آپ انٹرویو دے رہے ہیں, اور بھارتی میڈیا کو اس انٹرویو میں آپ اپنے ملک کو کنٹروورشل کر رہے ہیں, آپ اپنے ملک کے اداروں کو کنٹروورشل کر رہے ہیں. کسی بھی میڈیا کو اب وہ ملک جو کہ پاکستان کا نام چلاتے ہوئے بھی جو ہے وہ کتراتا ہے, وہ آپ کے ملک کے لیے وہ پی ٹی آئی کی خبریں بڑی بریکنگ نیوز کر کے چلا رہے ہیں اور وہ اجاگر کر رہے ہیں. تو کیا ادھر بھارتی میڈیا کے پاس آپ انٹرویو دے کے آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں میں نے کہا کہ ماضی میں جتنے سینئر لوگ بیٹھے ہیں, آپ تو سبھی سب جوان جرنلسٹ ہیں, یہاں جو کرسی بیٹھے ہیں بہت سینئر جرنلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں. ماضی میں جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا آج تک پاکستان کی ہسٹری میں کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوا. ساری پولیٹیکل پارٹی جتنے بھی نام لے لیں, واحد پولیٹیکل پارٹی تھی پیپلز پارٹی جس کی پوری لیڈرشپ شہید ہو گئی. قائد اعظم شیخ ذوالفقار بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی, محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو شہید کیا گیا. اس کے باوجود کبھی آپ نے سنا کہ پیپلز پارٹی طرف سے کوئی ایسا کام کیا گیا ہو کہ کبھی اداروں کو اس طرح نشانہ بنایا گیا ہو, اداروں کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہوں. انٹرنیشنلی آپ دنیا بھر میں اپنے ہی ملک کے اداروں کے خلاف جو ہے وہ آپ مہمیں چلا رہے ہو. کسی پر ہاں باقی پولیٹیکل پارٹی نے کی ہیں, کافی پولیٹیکل پارٹی جب بھی ان کی لیڈرشپ جیلوں میں رہی ان کے بیانیے تبدیل ہوتے رہے. پیپلز پارٹی کا بیانیہ ہمیشہ آمریت کے خلاف رہا ہے, مارشل لا کے خلاف رہا ہے, اداروں کے خلاف کبھی نہیں رہا. پیپلز پارٹی نے کبھی بھی اداروں کے خلاف بات نہیں کی, نہ اداروں کے سربراہ کو کنٹروورشل کیا, نہ کبھی اداروں کے خلاف بات کی. بدترین حالات میں یہ بیٹھے ہوئے یہاں پہ دوست ہمارے سارے اخبار محاذہ نے, جب محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو شہید کیا گیا تو کیا حالت تھی, آپ کس سے چھپی ہوئی ہے؟ ہماری تو میموری جلدی بھول جاتے ہیں. کیا حشر تھا پورے پاکستان کا, جس طریقے سے ایک آگ لگی ہوئی تھی پورے پاکستان میں. پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے اس وقت جو پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تھا, لوگ کہتے ہیں کیا ہے بس پاکستان کھپے کا نعرہ لگائیں گے, اس پر بات کرتی ہے. وہ بہت امپورٹنٹ نعرہ تھا. وہ اس حالات میں, کیونکہ ہر چیز کی حالات کی بات ہوتی ہے, ان حالات میں جب سڑکوں پہ آگ لگی ہوئی تھی, سندھ بھر میں کوئی ایسا ایک سڑک نہیں تھی جہاں پہ جو ہے چلنے کا راستہ ہو, لوگ سراپا احتجاج تھے. اس وقت پاکستان کھپے کا نعرہ لگانا کا مقصد کیا تھا کہ پاکستان سے محبت کی نشانی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے, جو بھی چیزیں ہوئی ہیں ان کو دیکھا جائے گا لیکن اپنے ملک کو کوئی نقصان نہ پہنچے. یہ ہونی چاہیے آپ کی مینٹلٹی. یہ نہیں کہ آپ 2.5 سال آپ جیل میں ہو اور 2.5 سال جیل میں رہنے کے بعد آپ اپنے ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہو. آج اگر اس شخص کے آپ حوالے کر دیں عمران خان کے حوالے اور اس کی مرضی سے دے دیں کہ وہ اس کا جو بس چلے تو کیا نہ کرے,
अभी वो अरेस्ट ही नहीं हुआ तो मुल्क पे एटम बम गिराने की बातें कर रहा था अपने मुल्क पे बैठकर, और अपने मुल्क के बयानी को किस तरह झूठ बोल बोल कर उसने अपने बयानी बेचे अपने मुल्क के खिलाफ। कभी कहा कि साइफर जी बैरूनी साजिश है, फिर जिस मुल्क के आप पे इल्जाम लगाया कि जी बैरूनी साजिश है, उसी मुल्क में अपने जो है लॉबिस्ट मुकर्रर कर रहे हो पैसे देकर। ये कौन सी मुनाफकत चल रही है, ये कौन सी सियासत हो रही है? आप पूरी कौम को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हो कि जी मुझे हटाने में बैरूनी जो है वो साजिश थी, और फिर उसी मुल्क में आप अपने बंदे बोल रहे हो, भेज रहे हो कि जी वो मेरे लिए आप लोग करें लॉबिंग करें, आप लोग करें लॉबिंग करें वहां पे। ये कौन सी मुनाफकत है? ये आप शासन से कहते हैं कि आप एक तरफ नफरत की आग फैला अपने लिए रास्ते ढूंढ रहे हैं अपनी रिहाई के और अपनी हुकूमत के लिए। यही आज अगर इमरान खान साहब और उनकी पार्टी अभी बयानी अच्छा ये मशहूर करें, वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट पार्टी है, यही बयानी मशहूर कर रहे हैं ना वो लोग। ये वही शख्स जब इसकी हुकूमत गई जाने वाली थी तो इमरान खान ने जनरल बाजवा साहब को कहा कि मैं आपको लाइफ टाइम के लिए 10 साल के लिए आर्मी चीफ बनाने के तैयार हूं। उस वक्त कहा कि इसकी वो जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट वाली सोच जो आज बात कर रहा है वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट पार्टी है। और उसके बावजूद इमरान खान साहब कैसे आए थे इक़्तिदार में, किससे छुपी हुई बात है, किस तरीके के इलेक्शन के नतीजे में इक़्तिदार में आए थे। तो एक शख्स जिसकी बुनियादी झूठ पर फरेब पर हो, तो आज बैठकर अपने मुल्क में अपने नौजवानों को आप एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयान देने की बात करते हो, या अपने इदारों के खिलाफ बयान देने की बात करते हो, या अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाने की बात करते हो, ये कहीं से भी जो है ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। तो कल जो आपने कहा कि DGI स्क्वायर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो बिल्कुल सही थी कि वो शख्स जो कि इदारों को नुकसान पहुंचाए, वो शख्स जो इदारों के सरबराहों के खिलाफ प्रोपेगेंडास करे और उसके खिलाफ घिनौनी साजिशें करे, उसके लिए इंटरनेशनली फंडिंग होती रहे। ये सारे अकाउंट जो बाहर चल रहे हैं, यहाँ का बात क्यों नहीं करे वही लोग जो लोग बाहर में बैठ के ये ट्वीट्स कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, वो यहाँ पाकिस्तान भागी क्यों नहीं करते? अगर इतने ही सब अच्छे लोग हैं और इतने अच्छा वो समझते हैं कि जी वो अच्छा काम करें, यहाँ मुल्क में बैठकर काम करें ना वो। तो ये सारी चीजें बाहर ये साजिशें अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाने की, कमजोर करने की नाकाम कोशिश है। इस मुल्क को अल्हम्दुलिल्लाह क़यामत तक कोई खतरा नहीं है। इस तरह की सोच, इस तरह के लोग जो कि इस तरह की कोशिशें करते हैं, और ये सारी मुनाफिकत की निशानियां उनकी, क्योंकि उनके अपने इक़्तिदार के दौर में वो वही जुमले बोल रहे होते थे जिसके आज मुनाफिक करते हैं। वो कहते थे कि हमारे बहुत से ताल्लुकात हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और हिस्ट्री में कभी इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं होते जो कि पीटीआई प्राइम मिनिस्टर कहते थे जी जो मेरे ताल्लुकात हैं। हर चीज में बैठकर जो है उस वक्त उनकी तारीफ कर होते थे, लेकिन जब एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया और देखा कि जब मेरी हुकूमत सीट जारी है तो फिर पूरे टोकों ग्रुप उन्होंने पूरी इदारों के खिलाफ करना शुरू कर दिए। तो ये सिर्फ मुनाफिकत है और ये सिर्फ आवाम को धोखा देने की बात है। अच्छा सर, साहब ने कल एक बयान दिया कि बैठ के मुल्क के 3 जो बड़े जेल है उसकी सफाई हो रही है और वहाँ हो सकता है कि पीटीआई के बड़े रहनुमाओं को वहाँ शिफ्ट किया जाएगा और गिरफ्तारी भी होने वाली। तो आप क्या समझते हैं? किसने कहा? चौहान साहब जो वफाकी वज़ीर हैं, उसने कहा है कि शर्जील साहब ये बता दें, कल जो है वो DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में PTI को कौमी सलामती के लिए खतरा करार दे दिया गया। आप बहैसियत सीनियर सियासतदान, जमहूरियत पसंद सियासतदान, आप समझते हैं कि PTI पे पाबंदी लगनी चाहिए? देखिए, मैं पाबंदी कभी भी किसी जमात की बात नहीं करता, किसी जमात को पाबंदी लगनी चाहिए, लेकिन मेरी बात सुने, एक शख्स जो इंटरनेशनल लॉबिस्ट हायर कर रहा है कि अपने मुल्क के खिलाफ बयानिए बनाए जाएं, जिनके लिए इसराइल के जरीदे लिख रहे हैं, वो इसराइल जिसने ह्यूमन राइट्स की वायलेशन में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किए हुए, जिसने इंसानों की जो है नस्लकुशी की हुई है, वो इसराइल के जरीदे अगर लिख रहे हैं इमरान खान के हक में, जेरूसलम पोस्ट के वो आर्टिकल्स पढ़ लें, वो कह रहे हैं कि इमरान खान जेरूसलम के लिए बहुत अच्छा साबित होंगे और उस पूरे खित्ते के लिए अच्छा साबित होंगे। और जिसमें फॉरेन फंडिंग में, देखिए सारे मेरे बहुत सीनियर अखबार नवीस बैठे हुए हैं, आप फॉरेन फंडिंग केस का वो फैसला पढ़ लें, उसमें एक सेकंड सोच लें कि इलेक्शन कमीशन ने एक सेकंड के लिए ठीक है सही नहीं लिखा होगा, लेकिन जो उसमें शवाहिद दिए हुए हैं कि इमरान खान के लिए फंडिंग आई है इसराइल से, अकाउंट नंबरों से दी हुई है, फिर उसमें लिखा है कि भारत से फंडिंग आई है, ये चीजें किस चीज की निशानी देती है? मैं एक छोटी सी बात करता हूँ, हमारे सबके मरहूम हमारे शहीद साहब थे अरशद शरीफ साहब, उन्होंने एक शो किया था, उस शो के आप क्लिप देख रहे हो, उन्होंने खुद कहा था कि जी किस तरीके से इसराइल और भारत से पीटीआई को फंडिंग हो रही है। मुझे बताएं
सब सबसे ज्यादा कानून समझते हैं कि क्या पाकिस्तान में ये अलाउ है कि आप भारत और इसराइल से आपको इलेक्शनों के लिए फंडिंग करें, और अगर भारत और इसराइल आपको इलेक्शन के लिए फंडिंग करेगा तो फिर इसका मकसद क्या होगा, किस काम के लिए फंडिंग कर रहा है? वो उसी इंतशार के लिए फंडिंग कर रहा है कि इस मुल्क में इंतशार फैले, इस मुल्क को नुकसान पहुंचे, और उसको नुकसान पहुंचाने के लिए इमरान खान शुरू से प्लान किया गया था। हमें भी छोड़ दें। डॉक्टर इसरार अहमद को किसने किसने सुना है? आप सबने सुना होगा डॉक्टर इसरार। डॉक्टर इसरार अहमद ने आज से कितने साल पहले कहा था? डॉक्टर इसरार अहमद कितने साल पहले कहा था? और आज के और बताया था कि ये प्लान किया जाएगा और प्लान करके उसको वजीर बनाने की साजिश होगी, और वो सही साबित हुई। उसको तो कोई और चीज नहीं थी। मौलाना अब्दुल सत्तार ईदी साहब, कौन नहीं जानता मौलाना अब्दुल सत्तार ईदी साहब को? नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल एक कौमी हीरो है हमारे पाकिस्तान के सत्तार ईदी साहब। सत्तार ईदी साहब ने क्या कहा? सत्तार ईदी साहब ने कहा कि ये मेरे पास आया कि जब मैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की हुकूमत गिरानी है, जो आज अपने आप को होता कि मैं एंटी स्टैब्लिशमेंट हूँ और मैं फलाना हूँ और ढिमका हूँ, ये उस वक्त कह रहा था कि जी मुझे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की हुकूमत गिराने के लिए इमरान खान साहब मेरे पास आए थे। इस तरीके से हकीम सईद साहब ने क्या लिखा है? तो ये मैं आपको कौमी हीरोज के नाम बता रहा हूँ जिन्होंने इस शख्स के लिए क्या लिखा है। तो ये शख्स जो आप बात कर रहे हैं, मैं नहीं कहता किसी में कोई सर्टिफिकेट देता, लेकिन ये कि इसके जितने अहमाल हैं ये पाकिस्तान के अच्छे नहीं थे। इसको प्राइम मिनिस्टर बना के हमसे इस मुल्क में जिसका भी फैसला था गलत फैसला था, वो गलती आपने की। उस शख्स को जिसका कोई पॉलिटिकल ग्राउंड नहीं था, उसको पूरे उसके लिए बाकायदा इंटरनेशनल लॉबिंग भी हुई है, और बड़े बड़े लॉबिस्ट जो है उन्होंने उसको बैठकर जो है इसको इस जगह तक पहुंचाया है कि वो पाकिस्तान में नुकसान करने की कोशिश कर रहा है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक एक बात की वजाहत करें सारे ये भाई ने सवाल किया था कि जमी अखबार काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स कि इनकी मेंबरशिप समेत हमारा हर फोरम पे ऑनरेबल सीनियर मिनिस्टर के सामने भी हमारा ये मौक़िफ़ है कि जो अखबार डमी है उस अखबार को आप चाहे सेंट्रल मीडिया लिस्ट से निकाल दें, चाहे उसकी मेंबरशिप खत्म कर दें, कोई एतराज़ नहीं। और दूसरी क्योंकि ये एडिटर्स का फोरम है, इस पे मुख्तलिफ लोग आके अपनी राय का इजहार करते हैं। ऑनरेबल शजील इनाम अहमद साहब ने अपनी पार्टी का मौक़िफ़ आप लोगों के सामने पेश किया और अपना मौक़िफ़ सामने पेश किया। इसका कतन या हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि CPA या कोई भी जमात शजील इनाम अहमद साहब के व्यू पॉइंट से इख्तलाफ नहीं कर सकती। कर भी सकती है। थैंक यू सो वेरी मच। ये उनकी ज़ाती है। थैंक यू। वो है ना, वो बैठा हुआ है ना अंदर। आप लोग बाहर चले